Good morning, students. Today I will learn about MySQL or the SQL revision tour. This is your fifth chapter, right? In this chapter, we will learn many things or many different things about the database. So first of all, we need to know what is a database or what is a database system. You know, database is a collection of interrelated data. We can say database is a collection of interrelated data, and database system is basically a computer based record keeping system. We have so many database. We can take example of our class students. Suppose we are collecting the data of our class students. Suppose their name, class, roll number, marks, their address, their phone number. So collection of all this data is also an example of a database. We can say student records. We can say teachers record, teachers ID, teachers name, teachers department, subject, whatever. Doctor's name, okay, patient name, hospital name, their IDs, their any other information we are stored when in a file, that is a database. Database we can say is a collection of interrelated data. So in this chapter you will come to know about so many things about the database. What are the different terminologies used in the database, right? So let's come to know one by one. Okay, let's students come to know about the introduction. As I told you, a database system is basically a computer based record keeping system. The collection of data, usually referred to as a database, contain information about one particular enterprises. In a typical file record keeping processing system, permanent records are stored in the various files. A number of different applications programs are written to extract records from the files and add records to the appropriate files. But this scheme has a number of major limitations and the disadvantages also, such as data redundancy. Data redundancy का मतलब होता है repetition of data, means duplication of data. Data inconsistency, unshareable data, unstandardized data, insecure data, incorrect data, etc. A database management system is answer to all these problems as it provides a centralized control of the data. मतलब क्या है इन चीज़ों का कि भाई अगर हम कोई भी वैसे बिना किसी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, बिना किसी सॉफ्टवेयर के कोई डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम डाटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन, डाटा बार बार एंटर हो सकता है, रिपीट हो सकता है. इनकन्सिस्टेंसी, अगर वो डाटा दो जगह है तो एक जगह पे डाटा कुछ हो सकता है, दूसरी जगह पे डाटा कुछ हो सकता है, इनकन्सिस्टेंट हो सकता है डाटा. अनशेयरेबल डाटा, जो डाटाबेस हमारा बनेगा वो इस शेप में हो सकता है कि उसको हम शेयर ना कर सकें. अनस्टैंडर्डाइज डाटा, डिफरेंट डाटाबेस के अंदर आप डिफरेंट प्रकार का टाइप का फॉर्मेट जो है आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है डेटाबेस के अंदर वो रो और कॉलम के अंदर होता है, ठीक है ना. तो डाटाबेस अनस्टैंडर्डाइज नहीं होता है, डाटाबेस स्टैंडर्डाइज होता है. यहाँ पे इनसिक्योर डाटा का मतलब क्या है कि हम उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कोई पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, और हम जिसको चाहें वही यूज़ कर सकता, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता. इनकरेक्ट डाटा, गलत डाटा एंटर कर सकते हैं. तो देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है. लेकिन जब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो डाटा होता है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर होता है, वहाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है, वहाँ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि हम उसके ऊपर प्राइमरी की लगा देते हैं. सो वी कैन से वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस सिस्टम आर: डाटाबेस सिस्टम रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक हमारा ख़त्म हो जाता है. आपने +1 में पढ़ा होगा कि जहाँ हम प्राइमरी की लगाते हैं वहाँ पर सेम डाटा एंटर नहीं हो सकता. So database system control data inconsistency to a large extent.
इसका मतलब क्या होता है कि डाटा अगर कहीं इस तरह का डाटा आपस में लिंक है और किसी दो फाइल के अंदर अलग अलग उसका लिंक है, तो एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह भी अपने आप चेंज हो जाएगा उसके अंदर। डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा, हम डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डाटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, एनफोर्स स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ कि जो डाटाबेस हमारा बनता है वो सभी का जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसी के अंदर बनता है। डाटा सारा का सारा रोज और कॉलम के अंदर अरेंज होता है। सो डाटा एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटाबेस तैयार कर दिया, वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर बनता है सभी का। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस कैन एंश्योर डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंटेग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू द डाटाबेस, इंटेग्रिटी का मतलब जैसे मैंने बताया था कि डाटा का लिंक दो जगह होता है, तो एक जगह चेंज होता है तो दूसरी जगह भी अपने आप चेंज हो जाता है, या एक्सीडेंटली हम उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते, एक्सीडेंटली उस डाटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डाटा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब था एक रूपता बनी रहती है उसके अंदर, राइट। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ आवर डेटाबेस। In this database, you will come to know about the relational data model, MySQL, a popular relational database management system, accessing database, creating tables, inserting data, making simple queries, okay, creating table with SQL constraints, viewing a table structure, inserting data into another table, modifying data in tables, deleting data, altering tables, dropping tables, okay, all these things you are going to learn in this chapter, right? Okay, let's first come to know relational data model. A data model refers to a set of concept to describe the structure of a database, यानी कि डाटा मॉडल का मतलब होता है कि हमारे डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, राइट। एंड सर्टेन कंस्ट्रेंट यानी कि restrictions that the database should obey. Most commonly used data model or database is the relational data model. Relational data model का मतलब है जहाँ पे आपको relations बनाने होंगे, यानी कि tables बनानी होंगी, right? In relational data model, the data is organized into tables. और table का मतलब है जहाँ आपका डाटा रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड होता है। Okay, these tables are called relations. A row in a table represents a relationship among a set of values. Since a table is a collection of such relationship, it is generally refers to using the mathematical term relation, from which the relational data model derives its name. Let us know revise different terms used in the relational data model or the relational model. So first of all, relation. Relation means table, या तो हम उसको relation कहें या table कहें, right? A table storing logically related data. Data must be atomic in a cell. All rows of this table are distinct. Ordering of rows and columns is immaterial, right? हर रो का जो है डाटा अलग होना चाहिए, वो लॉजिकली रिलेटेड डाटा होना चाहिए आपस में, ठीक है। सेकेंड थिंग है डोमेन। दिस इज ए पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन ए गिवन कॉलम्स आर ड्रॉन। किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप एक जैसी वैल्यू मिलेंगी, राइट। सो दिस इज ए पूल ऑफ वैल्यूज, सो दैट इज डोमेन। टपल, टपल बोलते हैं रो को। ए रो इज ए ऑफ ए रिलेशन इज जनरली रेफर टू एज ए टपल। एट्रीब्यूट बोलते हैं कॉलम को, एट्रीब्यूट। ए कॉलम ऑफ ए रिलेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज एन एट्रीब्यूट। डिग्री, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं हमारे एक टेबल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिग्री। स्टूडेंट्स मेनी टाइम आस्क दिस क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज कार्डिनैलिटी,
and don't confused in this. Degree total number of columns, cardinality होता है total number of rows. Degree total number of columns in a table, cardinality total number of rows in a table. So you can see attribute को भी आप columns बोलते हैं और tuples को rows बोलते हैं. So this is degree and cardinality. View. It is a virtual table that does not really exist in its own right, but is instead derived from one or more underlying base tables. होता क्या है कि जो व्यू है वो उसका अपना कोई डेटा नहीं होता, वो दूसरी टेबल के डेटा से लेके एक प्रकार की टेबल ही बनाई जाती है. हम वो टेबल की सारी कमांड उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसको व्यू बोलते हैं. व्यू कंप्लीटली हम उसमें रीड करेंगे आगे चलकर. राइट. आगे हैं प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की. ये 4 तरह की कीज़ आप अच्छी तरह से समझिए. एज यू नो, प्राइमरी की refers to a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within a relation. और ये सोचिए कि जिस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपने प्राइमरी की अप्लाई किया है वहाँ पर कोई भी 2 वैल्यू एक जैसी एंटर नहीं होंगी, कोई भी डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं होगा. राइट. एक होता है कैंडिडेट की. स्टूडेंट्स, ये डिफाइन नहीं किया जाता है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा. मान लीजिए एक टेबल के अंदर 2 फील्ड ऐसे हैं जिनको हम एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो दोनों फील्ड हमारे कैंडिडेट की कहलाते हैं. अब आप सोच के देखिए, सपोज स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, उसके अंदर एडमिशन नंबर भी है, फील्ड का नाम, और रोल नंबर भी है. एज यू नो कि एडमिशन नंबर के अंदर भी सारी की सारी वैल्यू यूनिक्स होंगी और रोल नंबर के अंदर भी. तो हम किसी को भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं. तो दीज बोथ आर कैंडिडेट की, एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर, ये दोनों कैंडिडेट की कहलाते हैं. इसको कहीं लिखा नहीं जाता, कि इसको कहीं डिफाइन नहीं किया जाता, हमें खुद समझना है इसको कैंडिडेट का मतलब क्या है. सो ऑल एट्रीब्यूट combinations inside a relation that can serve as a primary key are candidate key as they are candidates for the primary key position. यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी हो सकते हैं फील्ड ऐसे हैं हमारी टेबल के अंदर जिनको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं. तो वो दोनों जो कीज़ हैं, दोनों जो फील्ड हैं, वो हमारे कैंडिडेट की कहलाते हैं. अब आप सोच के देखिए, उन कैंडिडेट की में से हमने एक को तो डिफाइन कर दिया, किसी एक को तो प्राइमरी की बनाएंगे ही. मान लीजिए 2 फील्ड थे हमारे, एक फील्ड को हमने प्राइमरी की बना दिया, सपोज एडमिशन नंबर को, तो रोल नंबर क्या बच गया? अल्टरनेट की. ये भी कहीं लिखा नहीं जाता, ये आपको समझना पड़ेगा. तो जो फील्ड जिसको हमने प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं किया है वो हमारा अल्टरनेट की बच गया. दोनों को मिला के हम कैंडिडेट की बोलेंगे, एक को उनमें से प्राइमरी की डिक्लेयर कर देंगे और दूसरा जो बच गया वो हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा. सो वी कैन से अल्टरनेट की हो जाएगा. ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की और दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज ए प्राइमरी की इज कॉल्ड द अल्टरनेट की. फॉरेन की क्या होता है? ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज द फॉरेन की इन इट्स करंट टेबल. इसमें क्या होता है, आपकी 2 टेबल होती हैं, एक पेरेंट टेबल, एक चाइल्ड टेबल. पेरेंट टेबल का जो फील्ड है, जो प्राइमरी की है पेरेंट टेबल की, वही सेम फील्ड आपका चाइल्ड टेबल के अंदर भी होता है और वहाँ पर वो फील्ड एज ए फॉरेन की काम करता है. राइट. इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉरेन की के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे वो प्राइमरी टेबल से लेंगे आप. पेरेंट टेबल की ही वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए सारी की सारी, उससे बाहर की वैल्यू नहीं आ सकती. पेरेंट टेबल में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो चाइल्ड टेबल में अपने आप चेंज हो जाएगा. वहाँ पे अगर उस किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल से अपने आप वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. तो ये पूरा कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे. इट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. द सेम थिंग फॉर द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. Referential integrity can be maintained through the foreign key. A referential integrity is a system of rules that a DBMS use
to ensure that relationship between records in related tables are valid and that user does not accidentally delete or change the related data. You can set referential integrity when all of the following conditions are met. The matching field from the primary table is a primary key or has a unique index, right? The related fields have the same data type. Both tables belong to the same database. A referential integrity can't be enforced for linked table from database in other formats. कहने का मतलब क्या है कि रेफरेंशियल जो इंटीग्रिटी है वो आपका फॉरेन की के थ्रू मेंटेन किया जाता है, राइट? और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में भी वही चीज़ें होती है कि वो टेबल आपकी होनी चाहिए, वहाँ पे उसका फील्ड उसमें ऐड होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जब आपको फॉरेन की समझाएंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट MySQL, a popular relational database management system in the short form RDBMS. MySQL इज ए फ्रीली अवेलेबल का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, नेट से हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इसको. ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वी कैन से RDBMS दैट यूजेज SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. इट इज़ डाउनलोडेबल फ्रॉम द साइट www.mysql.org. In a MySQL database, information is stored in tables. A single MySQL database can contain many tables at once and store thousands of individual records. MySQL provides you with a rich set of features that support a secure environment for storing, maintaining, and accessing data. MySQL is a fast, reliable, scalable alternative to many of the commercial RDBMS available today. So, MySQL database system refers to the combination of a MySQL server instance and a MySQL database. MySQL operates using the client-server architecture, in which the server runs on the machine containing the database and the client connect to the server over a network. तो ये क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट है, यानी कि हम यहाँ से अपने सिस्टम से कमांड देते हैं, जो इसका सर्वर होता है उससे वो कमांड एक्सेप्ट होती है, डाटाबेस से वो उसका आउटपुट देता है. द सर्वर MySQL सर्वर listens for the client request coming in over the network and access database contents according to those requirements or those requests and provide that to the client. क्लाइंट कौन होता है? जो रिक्वेस्ट भेजता है. क्लाइंट्स आर प्रोग्राम्स, हम MySQL के थ्रू भेजेंगे. एक्चुअली MySQL एक टूल है जो हमें डायरेक्टली SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. Clients are programs that connect to the database server and issue queries in a pre-specified format. MySQL is compatible with the standard-based SQL, or we can say SQL structure query language. So don't confuse in the MySQL and SQL. In order to access data within MySQL database, all programs and users must use SQL or must use structure query language. SQL is the set of commands that is recognized by the nearly all RDBMS. So the SQL is a language that enables you to create and operate on relational database which are सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल्स. यानी कि एक्चुअल में तो हम SQL को एग्जीक्यूट करते हैं. MySQL एक टूल है जो SQL कमांड को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट.
एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कमांड जिसके अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेज और मेंटेनेंस ऑफ कमांड्स, यानी कि क्लासिफिकेशन, वी कैन से ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल, राइट। डीएमएल जो है, पहले डीडीएल, ये जितने भी कमांड्स है क्रिएशन से रिलेटेड, कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डाटा डेफिनेशन। ओके, आपको टेबल बनानी है, चेंज करनी है, डिलीट करनी है, तो ये सब डीडीएल कमांड्स में होता है। डाटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन, फॉर एग्जांपल रिट्रीवल, यानी कि उसमें से डाटा को एक्सेस करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना और मॉडिफाई, चेंज करना ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए डाटाबेस। तीसरा होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि टीसीएल। टीसीएल कमांड्स दैट अलाउज यू टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को आपने डिस्कार्ड करना है, किसी को परमानेंटली सेव करना है। So a transaction is one complete unit of work or involving many steps, making changes to a database permanent, undoing changes। अगर आपको database को permanently सेव करना है या undo करना है उसको, या create save point बनाने हैं आपको, setting properties for the current transaction। There are other categories of SQL commands also, but above these categories of commands are मेनली यूज्ड बाय द लर्नर्स। इसके अलावा भी दो तीन और होते हैं। सो इन योर सिलेबस दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको मेकिंग चेंजेस परमानेंट, यानी कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं या कोई भी डाटा ऐड किया है उसको परमानेंटली सेव करना है तो कमिट कमांड होती है उसके लिए, और अगर आपको अंडू करना है तो रोल बैक कमांड होती है उसके लिए। ये आप आगे चलकर रीड करेंगे, ठीक है। परमानेंट सेविंग के लिए कमिट, अंडू चेंजेस के लिए रोल बैक। ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द कॉमन माईएसक्यूएल डाटा टाइप्स। देखिए, आप कोई भी डाटाबेस करते हैं या लैंग्वेज करते हैं, उसके लिए आपको उसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। You must know about which type of data types are there, or what different data types are used in MySQL. So data types are means to identify the type of data and associated operations for handling it. A values data type associate a fixed set of properties with the value. Some commonly used data types are char, varchar, tiny text, text, blob, medium text, medium blob, long text, long blob, tiny int, small int, medium int। ओके, ये उनकी वो रेंज है जहाँ पर आप डिफरेंट जो रेंज की वैल्यू है आप डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट डाटा टाइप उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली 4-5 डाटा टाइप हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे इंट, आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू डालनी है। बिग इंट का यूज़ बहुत कम होता है। फ्लोट का यूज़ होता है जहाँ पर आपको डेसिमल वैल्यूज़ देनी है। डबल का यूज़ होता है, इसमें भी डेसिमल वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। डेसिमल का यूज़ होता है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। डेट का यूज़ होता है जहाँ पर आपको डेट टाइप डाटा डालना है, और डेट का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर YYYYMMDD, इस तरह से 4 डिजिट में आपको ईयर लिखना है, 2 डिजिट में आपको मंथ लिखना है और 2 डिजिट में आपको डे लिखना है। डेट टाइम का कम यूज होता है, मतलब मोस्टली जो डेट टाइप फील्ड होंगे हमारे उसमें डेट का ज़्यादा यूज होगा। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं इसमें से। बुलियन का यूज़ कम होता है। बुलियन का यूज़ आपको जब करना है जब आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देनी होती है। तो ऑलमोस्ट 4-5 जो डाटा टाइप हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। बट आपको पता होना चाहिए
कि कौन कौन सी डाटा टाइप हमारे पास होती है। ठीक है, कैर का यूज होता है सबसे ज़्यादा, वेर कैर का यूज होता है सबसे ज़्यादा, टीनी और मीडियम इनका यूज़ बहुत कम होता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। देखिए सबसे ज़्यादा यूज होता है इंट का, कैर का, वेर कैर का, फ्लोट, डबल या डेसिमल, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, और डेट का, कभी कभार बूलियन का। तो इन डाटा टाइप्स का यूज सबसे ज़्यादा होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारी डाटा टाइप होती कौन कौन सी हैं, उनके अंदर हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, राइट, या किस तरह से उनके अंदर वैल्यू डाली जाती है। जब हम टेबल बनाएंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि डाटा टाइप हमारी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, ये मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे बताऊंगा। कैर जो है हमारा फिक्स्ड लेंथ का होता है और वेर कैर हमारा वेरिएबल लेंथ का होता है। अगर किसी फील्ड की विड्थ आपने 10 दे दी और उसकी डाटा टाइप कैर लिखी है तो वो 10 की विड्थ लेगा उसके अंदर, यानी कि 10 कैरेक्टर का स्पेस लेगा ही लेगा। लेकिन वेर कैर में ऐसा नहीं होता है। वेर कैर में अगर आपने विड्थ तो 10 की दे दी है लेकिन कैरेक्टर उसमें आपने 5 ही एंटर किए हैं तो वो 5 कैरेक्टर का ही स्पेस लेगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और जैसे ही कैर या वेर कैर वैल्यू डालेंगे प्रैक्टिकल टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है। बस इतना समझ लीजिए, कैर हमारा फिक्स्ड लेंथ का होता है, उसको जितनी लेंथ हमने प्रोवाइड करवा दी डाटा टाइप के लिए वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, चाहे हम उसके अंदर 2 कैरेक्टर की वैल्यू लिखें, चाहे 3 कैरेक्टर की वैल्यू, चाहे 8 कैरेक्टर की, चाहे 10 कैरेक्टर की, राइट। लेकिन वेर कैर में भले ही हमने उसकी लेंथ 10 प्रोवाइड करवा दी हो फील्ड की, अगर हम उसके अंदर कम वैल्यू फिल करेंगे तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये इंटरनली इसके अंदर डिफरेंस रहता है कैर और वेर कैर के अंदर, राइट। सो नाउ लेट्स मूव आवर मेन टॉपिक्स, एक्सेसिंग डाटाबेस इन MySQL। यहाँ से आप लर्न करना सीखेंगे। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, जो सीख रहे थे, वो बेसिक चीज़ें थी। डाटाबेस क्या होता है, उसकी डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, कीज़ उसके अंदर कौन कौन सी होती हैं। जो एक्चुअल आपका डेटा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। डाटाबेस की कैसे आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, राइट। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है एक्सेसिंग डाटाबेस। तो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग SQL कमांड फॉर मेकिंग क्वेरीज यू नीड टू ओपन द डाटाबेस। कुछ बच्चे ये नहीं जानते कि डाटाबेस और टेबल में डिफरेंस क्या होता है। डाटाबेस सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है और एक ही बार क्रिएट करना होता है, यानी कि रोज़ रोज़ आप क्रिएट करोगे। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। एक बार जो डाटाबेस आपने क्रिएट कर दिया फिर आपको उसको यूज़ करना होगा, उसको ओपन करना होगा, ठीक है ना। अगर मैं अब सारी की सारी कमांड्स आपको बोर्ड के ऊपर बताऊंगा, ये कैसे आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको MySQL ओपन करना है। तो MySQL ओपन करने के लिए आपको पता ही है, आपने +1 में सीखा होगा कि MySQL कैसे ओपन करते हैं। फिर भी आप स्टार्ट पे क्लिक करके MySQL ओपन करेंगे, उसमें पासवर्ड डालेंगे, राइट, और MySQL ओपन हो जाएगा। अब जैसे MySQL प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपका, सपोज MySQL प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको ये देखना है कि हमारे पहले से कौन कौन से डेटाबेस इसके अंदर बने हुए हैं। तो शो डेटाबेसेस, ये कमांड आप देंगे तो उसके अंदर जितने भी डेटाबेस बने हुए होंगे पहले से, वो सबके लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अगर आपको उनमें से कोई यूज करना है तो दैट इज ओके। तो आप लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम, किसी नाम से तो वो डेटाबेस बना हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यूज स्कूल, ओके, एंटर। तो एक मैसेज आएगा नीचे, डेटाबेस चेंज्ड, डेटाबेस चेंज का मैसेज आएगा आपको, ये मैसेज आ जाएगा,
ठीक है, अब आप उसके अंदर कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपको वो डाटाबेस नहीं चाहिए जो इसके अंदर लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, आपको अपना खुद का डाटाबेस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर आपको करना है क्रिएट डाटाबेस स्कूल या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, क्रिएट डाटाबेस स्कूल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कुछ भी, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। ये मान लीजिए जिस तरह से फाइल एक फोल्डर होता है, आपको इस फोल्डर का नाम देना है सपोज आपको, उसके अंदर फिर आप बहुत सारी फाइलें रख सकते हैं। इसी तरह से एक डाटाबेस के अंदर आप बहुत सारी टेबल्स जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। सो अब आपने सपोज मैंने इसका नाम हॉस्पिटल रख दिया या मैंने इसका नाम माई डाटाबेस रख दिया, माई डाटा, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इस डाटाबेस को में काम करने के लिए आपको इसको यूज करना है। अगर आप पहले से बना हुआ डाटाबेस यूज कर रहे हैं या अपना खुद का बना हुआ यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको डाटाबेस यूज करना ही पड़ेगा, राइट। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कमांड यू विल गिव टू ओपन ए डाटाबेस। सिंपल, यूज। डाटाबेस का नाम है माई डाटा, सेमीकोलन, डोंट फॉरगेट द सेमीकोलन इन द लास्ट। माइस्क्यूएल में जितनी भी कमांड्स लिखी जाएंगी सबके पीछे सेमीकोलन लगेगा, राइट। यूज माई डाटा। अगर ये डाटाबेस आपका पहले से बना हुआ है या कोई भी डाटाबेस पहले से बना हुआ है, कोई डाटाबेस आपने यूज कर लिया है, उसके अंदर टेबल कौन कौन सी बनी हुई है पहले से, ये अगर आपका देखना है तो लिखेंगे शो टेबल्स, शो टेबल्स। इट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर डाटाबेस जो आपने यूज किया है, तो चाहे वो कोई सा भी है, उसके अंदर पहले से कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, ये देखने के लिए आपको कमांड देनी है शो टेबल्स, राइट। और अगर आपको फिर अपनी खुद की टेबल बनानी है तो फिर आपको सीखनी पड़ेगी कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। इन +1 class you also learn about how to create tables. Today I also told you how we can create a new table, right? So let's come to know how we can create a table. Okay, in next video we'll learn how we can create